में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन विच वी स्टडीड अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट, जिसमें हम बात करते थे कि स्टेशनरी चार्जेस की, एंड देयर वर नंबर ऑफ स्टेशनरी चार्जेस Q1, Q2, Q3 and so on. Then if these are source charges, then force on any test charge, suppose this is capital Q test charge, due to all of these charges can be found by the superposition principle. In that we have to find the force due to single charge, and the total will be then the vector sum of all the forces, all the individual forces, according to superposition principle. All these things and the related phenomena with static charges we studied in electrostatics, but now we will study magnetism. So these charges were in rest. What if the charges are in motion? अगर motion में charge move कर रहा है तो तब कितनी force आएगी, कहाँ से आएगी, वो सब अब हम पढ़ेंगे. That is in the magnetism. So now magnets तो आप सबने पढ़ा है. You might have studied about magnets. Magnets कहाँ से आई? In the 5th century, you know, Greeks, they already knew that there are some rocks which attract pieces of iron-like materials, and these rocks were in plenty in the district of Magnesia. So these were named as magnets, and these rocks contain iron oxide, named as magnetite. So from here magnetism comes, and after that, you know, Chinese used these magnetite needles to make the compass. तो इस तरह मैग्नेटाइट मटेरियल से मैग्नेट्स और ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो मैग्नेट्स के बारे में. एंड मैग्नेटाइट्स जो मटेरियल होते हैं, there are two places where the field magnetism is maximum. These places are known as poles. मैग्नेट्स पे दो एक्सट्रीम पोजीशंस पे जहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड रहता है, these are known as poles. And poles do not exist, monopoles do not exist. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मोनोपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, एक सिंगल माइनस चार्ज या सिंगल पॉजिटिव चार्ज कैन एग्जिस्ट, बट इन केस ऑफ मैग्नेट्स मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. आइसोलेटेड जो मैग्नेट्स हैं एग्जिस्ट नहीं करती, ऑलवेज डाइपोल एग्जिस्ट. स्टेशनरी चार्ज है उसके अराउंड जो है, जिस रीजन में आप किसी दूसरे चार्ज को लेके आओगे तो दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसके अराउंड जो फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है. 19th century, a Danish physicist Ørsted made a crucial discovery about it. He found experimentally that whenever a current is flowing through a conductor, किसी कंडक्टर में से या स्ट्रेट वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, इन केस it produced magnetism, it produced magnetic field, and this was very important experiment ever done. After this discovery of Ørsted, there are number of further experiments or research came like Faraday, Henry, and after that Maxwell made a field theory, which is actually heart of this electricity and magnetism course. Maxwell gave Maxwell equations. We will discuss these equations later in your course. Maxwell equations. Suppose दो wires, we attach them from ceiling, and आप यहाँ पे बैटरी लगा दो. If current flows in anti-parallel directions in these wires, they will repel each other. अगर दोनों वायर में एंटी पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगी, ठीक है. इफ करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, in parallel direction, suppose these are further connected, in that case these wire will attract each other. तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन, इन केस व्हेन चार्ज इज मूविंग, आपको पता है करंट फ्लो कर रहा है मींस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द वायर्स, तो जो वायर में चार्ज मूव कर रहा है उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके बाद इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कहाँ से आ रहा है. फॉर अ मोमेंट इफ वी अज्यूम कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिया जो कि रेस्ट पे है.
अगर ये वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन है, तो इस ये जो बाहर चार्ज रखा है Q, इस पे भी फोर्स लगनी चाहिए, बट नो फोर्स, इट एक्सपीरियंस नो फोर्स। ये Q चार्ज जो रेस्ट पे पड़ा है इस पे फोर्स नहीं लग रही, सो इट मींस ये दोनों वायर्स जो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं या अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज सम अदर फोर्स, कुछ और फोर्स आ रही है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर रही हैं, दैट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। कहां से आई? बिकॉज जो करंट है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और उसी फील्ड की फोर्स से, उसी फील्ड की जो फोर्स है उसकी वजह से ये जो एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, so there are many other demonstrations also. Magnetic field is, now we can say it is a region around the करंट कैरिंग कंडक्टर, कि उस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आके मूव करेगा तो उस पे फोर्स लगेगी। सो मैग्नेटिक फील्ड इट इज अ वेक्टर फील्ड एंड इट इज स्पेसिफाइड बाय अ वेक्टर बी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वी रिप्रेजेंट बाय ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिमिलरली दिस बी, दिस रिप्रेजेंट, दिस स्पेसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन ऑल्सो। कहीं पे हम इसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे, sometimes we will say magnetic flux density. It is a vector field. Vector है तो it will have magnitude as well as direction. तो अब हम बात करेंगे डायरेक्शन कैसे होगी। ये तो पता चल गया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसमें करंट जब फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड? तो डायरेक्शन इसकी आप चाहे तो राइट हैंड कॉर्कस्क्रू रूल से फाइंड कर सकते हैं और राइट हैंड थंब रूल, ये सब आपने 8th 9th 10th क्लासेस में भी पढ़ा होगा। राइट हैंड थंब रूल में क्या है? द थंब ऑफ राइट हैंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट अपवर्ड जा रहा है देन द कर्ल ऑफ दीज फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और अगर डाउनवर्ड करंट है तो फील्ड क्या होगा? these curl of fingers will give magnetic field though in clockwise direction. Okay, अगर आप कोई फिजिक्स में अभी हम जब नोटेशंस देते हैं, अगर इनवर्ड कोई वेक्टर दिखा रहे हो, वेक्टर अंदर की ओर जा रहा है, इनवर्ड इस ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ वेक्टर है, वेक्टर आपको पता है ना, इस तरह से अगर रिप्रेजेंट करें किसी वेक्टर को तो इनवर्ड को हमेशा ऐसे क्रॉस से दिखाते हैं एंड आउटवर्ड करंट को दिखाएंगे हम डॉट से। मतलब वो जो आउटवर्ड वेक्टर है वो बोर्ड से बाहर की ओर जो बाहर है तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, आउटवर्ड वेक्टर। ठीक है, अब सपोज करो करंट इनवर्ड जा रहा है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे आप स्क्रू को अंदर जब करते हो, ठीक है, अंदर की ओर कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या आएगा? क्लॉकवाइज। अगर आउटवर्ड आ रहा है तो मतलब स्क्रू को हम खोल रहे हैं राइट हैंड से, ठीक है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो दीज रूल्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड है, उस फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। फोर्स निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड, उसका डेरिवेशन तो नहीं है, विच आर फाउंड एक्सपेरिमेंटली। तो सिमिलरली फोर्स भी एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कोई चार्ज है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आके बैठ जाता है तो ये उस पर फोर्स लगाता है, अगर सेम है तो रिपल्शन कर होती है, अगर ऑपोजिट है तो अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला था हमने? Q इंटू ई, सिंपल, ये हम पढ़ चुके हैं। तो सिमिलरली आप सोचोगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऐसे निकाला है तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी ऐसे निकाल दो सीधा, एफ बी, बट नो, बिकॉज ये क्यों नहीं डायरेक्ट लगा सकते? बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। सो जो फोर्स होगी मैग्नेटिक फील्ड की, अगर कोई चार्ज Q है, इफ इट इज मूविंग, अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है Q चार्ज, ठीक है,
तो इस पे इट वाज फाउंड दैट जितनी इसका चार्ज की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज। कितना ज्यादा फास्ट चार्ज मूव करेगा उतनी उस पे फोर्स ज्यादा लगेगी, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी फोर्स ज्यादा लगेगी। तो जो फोर्स है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स होगी that will be perpendicular to the motion of charge as well as to the magnetic induction. Okay, so q f is equal to f due to magnetic field is q v cross v. अब अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है बिकॉज ऑफ चार्ज, सोर्स चार्ज, तो टोटल जो नेट फोर्स आएगी इट विल बी द सम ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो टोटल फोर्स आ गई इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स लॉ। दिस इज नोन एज लॉरेंज फोर्स लॉ आफ्टर द डच फिजिसिस्ट, आफ्टर द नेम ऑफ डच फिजिसिस्ट लॉरेंज फोर्स लॉ which gives the magnet force due to electric and magnetic. This is a force due to magnetic field on a moving charge which is q and moving with the velocity v. Okay, अब ये तो आ गई फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड में लग रही है। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यू नो ये तो पता चल गया कि जब भी किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड दिया बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया, इसका भी आपको कोई डेरिवेशन नहीं है, ये चीजें इन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखी, उसी के बेस पे हमें फॉर्मूला दिया टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन बी। सपोज कोई भी आर्बिट्रेरी हम कंडक्टर ले लें, हम उतना स्ट्रेट पोर्शन एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे जिसमें करंट एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो बायोट-सैवर्ट ने dB, it gives the magnitude of dB which is mu naught over 4 pi I dl sin theta over r square. There is no derivation or proof for this, it is totally experimentally they found this thing. कैसे आया ये? सपोज कोई कंडक्टर है जिसमें करंट इस आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसमें स्मॉल पोर्शन एज्यूम कर लो ए बी ऑफ लेंथ dl। अब dl लेंथ स्मॉल लेंथ है, इसमें तो डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही रहेगी, तो इस छोटे से पोर्शन की वजह से यहाँ पे कोई पी पॉइंट ले लेते हैं जिसपे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर है r, ठीक है। तो दे फाउंड कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी dB क्या है, dl की वजह से, पूरे कंडक्टर की वजह से b अगर है, हम स्मॉल पोर्शन एज्यूम कर लेते हैं, तो ड्यू टू dl पोर्शन dB इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट जितना ज्यादा होगा उतना फील्ड बढ़ता जाएगा, तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये भी एक्सपेरिमेंटली देखा इन्होंने। dB is proportional to the sine of angle between r and dl, suppose this is theta, okay, and it is inversely proportional to the distance, जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना फील्ड कम हो जाएगा, तो कंबाइन करके इनको जो फॉर्मूला बन गया dB is equal to proportional to I dl sin theta over r square and constant of proportionality is mu naught over 4 pi. This is a magnitude of magnetic induction due to the portion dl, due to this elementary portion. What is mu naught? It is permeability of free space, and mu naught over 4 pi की वैल्यू कितनी है? mu naught over 4 pi is equal to 10 raised to minus 7 यूनिट्स आप फाइंड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। दिस इज इन SI यूनिट्स और CGS में इसकी वैल्यू लेते हैं 1,
So this was about the magnitude of magnetic induction mu naught over 4 pi ideal sin theta over r square, which is called Biot-Savart's law. Now we will discuss the direction of this field. Direction कैसे होगी? स्क्रू रूल से भी देख सकते हैं. अगर दिस इज द आर एंड इन दिस डायरेक्शन करंट, तो जो B है इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ I एज वेल एज R. अगर आप स्क्रू को ऐसे घुमाएं तो स्क्रू किस तरफ जाएगा? इनवर्ड जाएगा. वी विल रोटेट द स्क्रू इन दिस डायरेक्शन I to R. I से R तक घुमाएंगे तो इट विल बी इनवर्ड. सो इफ करंट इज गोइंग इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन, तो जो फील्ड है इट विल बी inward in inward direction. Okay, and B is perpendicular to R as well as to the I. So अगर वेक्टर नोटेशन में लिखना है Biot-Savart's law को, the law in vector notation it can be written as dB vector is equal to mu naught over 4 pi dl cross r cap over r square, or you can also write it, this is unit vector along r vector, mu naught over 4 pi I dl cross r, dl vector cross r vector over r cube. This dB is due to this dl portion, and to calculate the magnetic field due to the whole conductor, we can integrate it. Then you can find integration of dB. By integrating, we can find the total field due to this whole conductor. Okay. So this law is similar to the Coulomb's law in electrostatics. उसमें भी that is also inverse square law, and this is also inverse square law. So this is magnetic equivalence of Coulomb's law.